सो ही इज एप्ट टू बी स्वेट बाय अ ग्लिप टॉक मीन्स उसमें टेंडेंसी है कि वो बहा लिया जाए। स्वे मतलब क्या होता है? बहा ले जाना, अपने पक्ष में कर। कोई ग्लिप टॉक करे तो उससे उसके पक्ष में हो जाता है ना। एन एप्ट कोटेशन, ऐसा कोटेशन जो क्या हो, उचित हो। एपोजिट मतलब उचित। एन एपोजिट, एन एपोजिट आंसर of fitting occasion, a befitting reply, a suitable candidate। सबका मतलब क्या है? सटीक, उचित, है ना। ओके। A venial crime, a minor crime, misdemeanor, misdemeanor, a misdemeanor जिसको माफ किया जा सके, है ना। पार्डनेबल माफ करने योग्य, एक्सक्यूजेबल माफ करने योग्य, कंडोनेबल माफ करने योग्य। A misdemeanor means a small crime, a minor कर दिया जाए, क्षमा योग्य। हाँ, इसका ऑपोजिट होता है फेलनी। फेलनी इज अ सीरियस क्राइम। ठीक है। व्हाट इज अ पेकाडिलो? अ पेकाडिलो इज द सेम misdemeanor or minor crime which can be excused. Okay. What is the meaning of condone? Condone means overlook or ignore, accept, नजरअंदाज करना, माफ करना। We do not condone ragging on the campus. We do not condone ragging on the campus. Peccadillo is a bad misdeed, a bad act, right? A misdeed is something bad that you do, right? But not very serious as to attract punishment, okay? But not very serious as to attract punishment, लेकिन इतना serious नहीं कि वो punishment उस पे लगे। Peccadillo, misdemeanor, छोटा क्राइम होता है। क्या होता है ये? छोटा अपराध, है ना। और ये क्या है? बड़ा अपराध, है ना। Who is a tyro?
Tyro novice. Tyro is inexperienced. Novice is new and inexperienced. Naive, inexperienced. Simple. Simple and inexperienced. Naive. Wet behind the ears. Not experienced. Inexperienced, right? Naive, tyro, novice. Someone who is new to some field, right? A beginner. Who is a person who has the gift of gab. The gift of the gab. What does it mean? Oratory. Oratory skill. The gift of the gab. If you have the gift of the gab, if you have the oratory skills, you can be a political leader, or you can be a sales executive, right? The gift of the gab. All right, so take the photograph. What is the meaning of disposition? Disposition is swabhav. Disposition is swabhav. A person of temperament. Misaz, right? A person of mild disposition, a calm disposition, a cool person, ill-disposed, angry, upset, ill-tempered. गुस्से में, ill disposed, well disposed, calm, शांत, है ना? calm, composed, शांत, है ना? चिड़चिड़ा, अशांत. Predisposed. He is predisposed to committing such acts. प्रवृत्ति वाला. प्रवृत्ति. Inclined. Having the tendency. Having the tendency. उसके अंदर क्या है? ये प्रवृत्ति है. Prone. है ना? Children are prone to being affected by such songs, है ना?
by cinema, by cinema. Children are prone. If you're predisposed to committing such acts, इसका मतलब आपके अंदर प्रवृत्ति है ऐसे एक्ट्स को कमिट करने की, है ना. टेंडर मीन्स नाजुक, एट अ टेंडर एज, नाजुक उम्र में, है ना. प्रिटेंड मतलब बहाना करना. प्रिटेंशन, प्रिटेंशन बहाना, है ना. इंटेंड इरादा करना. इंटेंशन इरादा. एक्सटेंड खींचना, विस्तारित करना. एक्सटेंशन विचार, विस्तार. कंटेंट मीन्स कंटेंट विथ समथिंग, से जूझना, है ना. कंटेंट मतलब तर्क वितर्क करना, है ना. कंटेंशन तर्क, है ना. कंटेंशन मतलब झगड़ा भी होता है ना. अ बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़. अ कॉज ऑफ क्वारल, अ कॉज ऑफ क्वारल, किसी क्वारल का, झगड़े का कारण, है कि नहीं. मुझे इस तरह की परेशानियों से, इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है. आई हैव टू कंटेंड विथ सच प्रॉब्लम्स, है ना. In a court case, when somebody, what is plea? प्रार्थना पत्र, याचिका. What is, who is plaintiff? शिकायत करता है ना. तो what are the contentions? What are the contentions of the, in the case? Contentions मतलब तर्क, शिकायत. क्या शिकायतें हैं किसमें, इन द पिटिशन, है ना. पिटिशन क्या होता है, प्रार्थना पत्र या याचिका. पिटिशन वो भी होता है ना. याचिका दायर करना. हाँ हाँ, प्लीड, प्लीड. प्लीड मतलब याचना करना, है ना.
याचना या प्रार्थना करना। I plead guilty, I plead guilty, या I plead not guilty. What does it mean? मैं मानता हूं कि मैं दोषी हूं, मैं नहीं मानता हूं कि दोषी हूं। प्लीड मतलब प्लीड गिल्टी मतलब दोष स्वीकारना, प्लीड नॉट गिल्टी मतलब दोष से इनकार करना। समझ में क्या आ रहा है? दोष स्वीकारता हूं या निर्दोष स्वीकारता हूं, है ना? निर्दोष हूं कह रहा हूं, ये दोनों का मतलब है। समझ में क्या आ रहा है? प्लीड गिल्टी, rebut, there is but of the rifle. The thick end of the rifle made of metal or wooden thing where you can hold the gun from, right? Rebut means counter, reply, answer back, प्रत्युत्तर देना, right? And rebuttal is noun. Rebuttal is प्रत्युत्तर। The accusation met with a form. Form means solid, strong, rebuttal। और जवाब में बहुत तगड़ा प्रत्युत्तर मिला, है ना? At one's wit's end क्या मतलब है? Unable to think properly, right? समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं? I was at my wit's end and I couldn't think of anything. तो मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था मैं क्या करूं, है ना? तो जो आरोप था, एक्यूजेशन इज आरोप, मेट विद अ फर्म रिबटल, उसका बहुत मजबूत प्रत्युत्तर उसको मिला। व्हाट इज रिटोर्ट? अ विटी, क्विक, विटी रिप्लाई, है ना? कॉन्ट्रारी इज उल्टा, विपरीत, ऑपोजिट। अभी हम लोग पढ़े थे एपोजिट। एपोजिट क्या था? उचित, है ना? ऑपोजिट क्या है? अलग है। और कंट्री आर्गुमेंट, है ना? He argued in my favor, क्या मतलब है? तर्क देना, है ना? I argued in the court, before the court, before the court, on his behalf, है ना? All my arguments were rejected, है ना? A contrary view, an opposite view,
A counter narrative. A counter narrative. विपरीत विचारधारा है ना. A counter narrative. What is narrative? A narrative is story, है ना, कहानी. Retaliate means बदले की कार्रवाई करना, जवाबी हमला करना. रिटेलिएशन. रिटेलिएशन मीन्स नाउन है ना, जवाबी हमला. In retaliation, from Indian forces, 5 Pakistani soldiers were reported to be, लिख भी सकते हैं या केवल डेड भी लिख सकते हैं ना. खबर बताएगी कि 5 लोग क्या हो गए, मारे गए. रिटेलिएशन है ना. कंकरेंट मतलब कॉन मीन्स टुगेदर, करंट मतलब चलने वाला है ना. हैपनिंग एट द सेम टाइम. He is serving है ना. 3 sentences concurrently. हाँ, 3 मामलों में वो उसको सजा है, तीनों concurrently सर्व कर रहा है ना. और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कैसा होगा, क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी. that can alter transformative means that has the potential to bring complete change or alteration. A disruptive technology, right? Disruption, बाधा. Disrupt, बाधित करना. जो दुनिया में चल रहा है सब डिसरप्ट कर दे, ऐसी टेक्नोलॉजी. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ disruptive technology. It can change everything that exists, right? Rupture, rapture. What is rupture? कट, फट, कटाव फटाव है ना, कटाव या फटाव. रैप्चर इज आनंद, हर्ष,
है ना? veins got ruptured, है ना? फट गई veins, है ना? नसें फट गई. rapturous crowd, आनंदित भीड़, है ना? रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले जीव. क्रीपर्स क्या होते हैं? हाँ, लत्तरदार, लत्तरदार पौधे. द प्लांट ऑफ बिटर गॉड और different god varieties, the plants of different god varieties, they're all creepers. सब लत्तरदार पौधे होते हैं ना. sang freud, what is sang freud? sang freud is confidence that something would happen. Dhoni's sang, how do you pronounce it? sang freud, sang freud was legendary. Legendary, legendary मतलब great. sang froid, ability to keep calm in a difficult or dangerous situation. The ability, है ना? the ability नहीं, है ना? poise, balanced state of mind, है ना? poise मतलब क्या होता है? शांत स्वभाव. he is poised to become the next PM. is poised to become the next PM मतलब अगला प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए एकदम क्या है? देखो पोइज्ड का मतलब POISED, पोइज्ड. रेडी, नहीं वो तो ठीक है. और रेडी, तैयार, सेट, है ना? sang fra, sang fro, sang fro, cool as a cucumber, a very calm, very cool and calm. He's as cool as a cucumber. It means he's a very calm and he's a very cool and calm person, है ना? कहीं पे भी लिख दो गूगल पे द लिस्ट ऑफ सिमिलीज, द लिस्ट ऑफ फिक्स सिमिलीज, आ जाएगा. कहीं पे भी आ जाएगा. ग्रोटेस्क क्या होता है? ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब होता है डिफॉर्म्ड एंड
डिफॉर्म्ड है, डिफॉर्म्ड विकृत, स्ट्रेंज in a way that it is unpleasant or offensive. ग्रोटेस्क बिहेवियर है ना. लाइक वॉकिंग नेकेड इन द स्ट्रीट्स है ना. ग्रोटेस्क. व्हाट इज गोरी? गोरी, विभत्स, bloody, violent है ना. गोरी इज हैविंग या वेरी वायलेंट है ना. वेरी वायलेंट एंड ब्लडी. Involving very bloody, gory, covered with blood, and gore is violence, bloodshed है ना, खून खराबा. gory sins in the film है ना. adult is 18 plus an adult. Adult movies is not meant for children. Adult movies are not meant for children. Movies are not meant for children. Only those people who are above 18 can watch these movies. Adult content, children are not suitable for children to watch. Adulthood क्या होता है? एटीन प्लस एज है ना. चाइल्डहुड है ना, एज बिलो 18 है ना. चाइल्डहुड है कि नहीं. जेरी का संबंध किससे? जेरी बूढ़ा. जेडी का संबंध क्या है? जेरिएट्रिक्स होता है ना. क्या पढ़ते हैं इसमें? जेरिएट्रिक related to dealing with old people. Old people's health. Old people's health. Geriatrics साइंस होता है. स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल्स हेल्थ. जेरिएट्रिशियन
A specialist, a doctor. A specialist, a doctor dealing with illnesses of old people, है ना. जेरिएट्रिशियन. पीड मतलब बच्चा होता है ना. पीडियाट्रिशियन क्या होगा? पीडियाट्रिक्स बच्चों का चिकित्सा विज्ञान, है ना. पीडियाट्रिशियन स्पेलिंग में ए रह भी सकता है और नहीं भी रह सकते हैं. पीडियाट्रिशियन बच्चों का डॉक्टर, है ना. चॉम्प क्या होता है? खाना. चॉम्प, CHOMP. मंच, चटचटा के खाना, है ना. चढ़चढ़ करके खाना, है ना. चॉम्प, मंच. जेरी, जेर और भी वर्ड में मिलेगा ना. बहुत सारा वर्ड होगा. जेरंटोलॉजी होगा, है. जेरंटोलॉजी क्या होता है? कैसे लोग बूढ़ा होते हैं, हैं? हाँ. द प्रोसेस ऑफ एजिंग, या इट्स स्टडी, या ऐसा पढ़ाई, है. हाँ, और इट्स स्टडी. जेरोंटोलॉजी, कैसे बूढ़ा होता है आदमी, इसका अध्ययन या उस प्रक्रिया को भी जेरोंटोलॉजी बोलते हैं ना. जो ऐसा अध्ययन करेगा वो जेरोंटोलॉजिस्ट हो जाएगा, है ना. जेरोंटोक्रेसी इज gerontocracy, a society ruled by the old, जो बूढ़े लोगों द्वारा जो कंट्रोल्ड हो, रूल किया जाए. Which country? No, India is not a gerontocracy. There are young people who are ruling in many states. A phenomenon, what does it mean? Phenomenon means गतिविधि, चीज. और एक दूसरा मतलब होता है कोई जबरदस्त चीज ना. phenomenal rise is phenomenal rise. rise मतलब उत्थान. is phenomenal rise. Keshav Prasad Maurya's phenomenal rise in UP politics, right? From rags to riches story. From rags to riches stories. Huh? Rise to ranks is like becoming
हायर ऑफिसर. Rise to ranks means become a high ranking official. Putin's rise to ranks is an interesting story. एब्सॉर्बिंग क्या होता है? डुबा लेने वाला है ना. इतना रोचक. एब्सॉर्ब्ड होगा तो पूरा तल्लीन है कि नहीं. सोखना होता है ना एब्सॉर्ब मतलब. पैंट मतलब क्या होता है? हाफना है ना. पैंट मतलब हाफना होता है ना. अटेंशन. रैंट अटेंशन होता है क्या? कुछ होता है रैंट अटेंशन की. रैप्ट विद रैप्ट अटेंशन. विथ रैप्ट अटेंशन का मतलब पूरा तल्लीन होकर, पूरे ध्यान से, पूरे ध्यान से. आई एम ऑल ईयर्स मतलब लिसनिंग केयरफुली है ना. रेडी या रेडी टू लिसन केयरफुली. You can ask what and how, but there is no why in English or in any language. अरे तो मैं बता तो रहा हूं, भाषा किसी ने नहीं बनाया, पता कि नहीं. ये सब प्रकृति डिवाइन प्रोविडेंस से हुआ है. Nobody has formed a language, right? किसी का किस पर बस नहीं चलता है. वश नहीं चलता है. वश. इमर्ज, सबमर्ज है. इमर्ज मतलब भरना. इमरजेंस उभराव ना. रिसर्च मतलब, सर्च मतलब क्या होता है? सर्च मतलब ग्रो, बढ़ना, फैलना. रिसर्च मतलब पुनः बढ़ना, फैलना. पुनः नहीं, वापस है ना. रिसर्जेंस of the right ideology. At the Hitler's time, nationalism चरम पर था ना. द राइट आइडियोलॉजी, द राइट विंग पॉलिटिक्स है ना. फिर से वो आ रहा है दुनिया में ना. रिसर्जेंस हो रहा है. द रिसर्जेंस ऑफ द राइट आइडियोलॉजी. द राइट विंग आइडियोलॉजी कहना सही रहेगा. द राइट विंग आइडियोलॉजी.
सबमर्ज मतलब क्या होता है? डूबना। इमर्स मतलब क्या होता है? डूबना, डुबाना, बोरना। आइडल इमर्जन, इमर्जन, इमर्शन ऑफ आइडल्स, मूर्ति का विसर्जन। सरस्वती माता की जय। इमर्जन ऑफ आइडल्स। He was immersed in his studies. हैं? डूबा, हाँ, पूरा लगा हुआ उसमें, तल्लीन, है ना? हैं? Engrossed, हाँ, इसका मतलब भी वही है, तल्लीन। Engrossed का एग्जाम्पल सेंटेंस? He was engrossed in conversation and did not notice me. और उसने मुझे देखा नहीं। कई बार बेटा आग लगा दिया है, जल रहा है कोई चीज, पापा, पापा बात कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है शर्मा जी कल तक आएंगे, पापा, पापा जला दिया मैंने, फोन छोड़ के भागे। And I was engrossed in conversation and did not notice me. दबे पांव को क्या बोलेंगे? दबे पांव वो अंदर आया, कैसे बोलेंगे? टिप तो टक 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 टू करके चलना। हाई हिल्स, क्या हो गया? He entered the room, हाँ? वो टिकटो नहीं है, टिपटोड, वो अलग चीज है, टिपटो अलग होता है, पांव उठा के चलना। दबे पांव से एक होता है स्टीलिंग, स्टेल्थली, स्टेल्थली, है ना? इन द सम टाइम इन बिटवीन, बीच में ही कभी घुस गया चुपचाप, है ना, उम्र में। जियर, चियर, स्नियर, पियर। पियर मतलब क्या होता है? समकक्ष व्यक्ति, है ना? पियरलेस, बेमिसाल। पियरलेस, है ना? ये कंपनी था पियरलेस, इंश्योरेंस कंपनी, है ना? अनराइवल्ड, जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। अनपैरेलल्ड,
स्नियर एट somebody समथिंग, क्या मतलब है? हम्म? हाँ, हंसी निपोड़ना, माखौल उड़ाते हुए, है ना? चीयर, किसी का मनोबल बढ़ाना, है ना? बोलकर, है ना? जियर, एग्जाम्पल सेंटेंस। जियर मतलब ताने मारना, बू करना, है ना? द ऑडियंस jeered loudly when he came on the stage, है ना? कुछ करते हैं घर पे जाके इसका, है? कुछ फायदा हो रहा है? इज इट हेल्पफुल? पैरानोया, फॉल्स फियर ऑफ समथिंग, है ना? बेमतलब डर, है ना? पैरानॉइड, बेमतलब डरा आदमी। He's paranoid about, he suffers from paranoia of being hurt by somebody. Yeah, he is paranoid. He's paranoid about being hurt by somebody. Heartless, क्रूअल, है ना? निर्मम, रिमोर्सलेस मतलब निर्मम। रिमोर्स मतलब क्या होता है? पछतावा, रिग्रेट, पछतावा, और रिपेंटेंस, पछतावा, है ना? ट्रिपल क्या होता है? नैतिक डर, अनस्क्रुपुलस, अनएथिकल, बैड, मोरली बैड। अनस्क्रूपुलस एक्टिविटी होता है ना, चोरी चमारी, है ना?